मंजिल की राह में रुकावटें जरूर आएंगी, पर जुनून हो दिल में तो राह भी रोशनी बन जाएगी। पैसा सिर्फ एक रास्ता है सपने सच करने का। पैसा सिर्फ एक रास्ता है सपने सच करने का। अगर हौसला हो मजबूत तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, a channel dedicated to shifting your mindset from restrictive mindset to growth mindset, a focused approach. The goal is simple yet profound: to empower you with the tools, strategies, and mindset shifts needed to secure your financial future. That is, we are securing your future financially. That is important. Many of us are conditioned to think money is in limited terms. But the truth is, पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक सोच का नतीजा है, एक सोच का नाम है। Money is not just necessity, it's the reflection of how we think about it. By embracing the growth mindset, we can break free from old limitations and open the door to unlimited possibilities. Join us as we explore how to transform your relationship with money, unlock new opportunities, and achieve lasting financial security. This journey will help you build a mindset that not only attracts wealth but also sustains it for future. Money Mindset Mastery with Vikas Joshi is an attempt, an effort, a koshish so as to improve on your financial security of your future, secure your future financially. ये सीरीज में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला आपको आपके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने का एक कोशिश है, जरिया है, एक कोशिश है, एक एफर्ट है। पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक सोच का नाम है। यह मार्गदर्शन आपके लिए एक ऐसी मानसिकता बनाएगा जो न केवल धन आकर्षित करेगा बल्कि उसे भविष्य के लिए बनाए भी रखेगा। That is why this series. So an effort is so that we all secure your future financially. So today's topic is, friends, financial mistakes to avoid. हमने अभी तक सीरीज में देखा हुआ है कि बहुत सारी वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर, बट इन द प्रोसेस वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द impulsive decisions may make you force to take the decisions which may be financially a mistake or a mistake that will not be able to secure your future. लेकिन कर लिया, अब डिसीजन ले लिया, impulsive decision था. So that is what we are addressing today, friends, that we should avoid these impulsive decisions, the financial mistakes that we should avoid for. One of them is living beyond your means. है ना, पहले जैसे हम मनी जनरेशन चालू करते हैं, जैसे हमने नौकरी लग गया, धंधे में शुरुआत हो गया और प्रॉफिट कमाना चालू किया, नहीं कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते आ गए खर्च करने के। पैसा टिकता नहीं है, उसे हमको टिकाना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर द बजट, देन ओनली द मनी विल बी विथ यू। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे ही आप अपने अनाउंस कर दीजिए दैट इन योर अकाउंट यू आर हैविंग 1 crore of rupees and you will realize that there are so many of your relatives or so many of your friends, and then one fine morning you tell them, no, I don't have any 1 crore rupees. अब ये कितने इतने फास्ट चले जाएंगे जितने फास्ट वो आए थे, है ना? सो पैसा, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई ऑलवेज से जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। सो डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स डोंट प्लान द एक्सपेंसेस फर्स्ट बिफोर यू प्रिपेयर फॉर योर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। हमेशा कहते हैं कि पैसे के बहुत पैर होते हैं, वो चल देता है, आपको उसके संभल कर रखना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर द बजट, प्रायोरिटाइज द नीड्स ओवर द wants. That is, you should be able to segregate exactly what are your needs and what are your wants. Now, what are your wants? Wants मतलब impulsive खरीदी। जैसे अभी मुझे लगा, मैं बाहर गया, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, घर में खाना बना है लेकिन आज मैं बाहर गया तो मैं बाहर में वड़ा पाव खा के आ गया।
The question is not of what the cost of vada pav is, but the question is, was it necessary? No, it was not necessary. घर में खाना था, तो अभी खाना वो फेंक देना पड़ेगा. Oh, so you are rich enough. इसे उसे मैं रिचनेस कहता हूं कि घर का बना हुआ खाना आप फेंकने के लिए तैयार हो, लेकिन बाहर से खरीद कर आप खा रहे हो. So that is what I say. You have converted your wants into needs. It was not at all a need. That is what I say. You should prepare your budget. प्लान करना ही चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि हमने शौक पूरे नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए. होता है, कभी कभी लगता भी है कि आज हम बाहर जाके खाना, बट देन दैट इज टू बी प्लान्ड. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. लिव विथ योर मीन्स, डोंट लिव बियॉन्ड योर मीन्स. स्टार्ट सेविंग पोर्शन ऑफ योर इनकम इमीडिएटली. एक इमरजेंसी फंड तो तैयार करना ही, मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया उस पर. इमरजेंसी फंड इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ. सेकेंडली, नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज फेलिंग टू सेव फॉर रिटायरमेंट or create investment. Taxes or budgeting can lead to costly mistakes. अगर आप फेल हो गए आपके प्लानिंग में, तो who is going to face it? You yourself. जिंदगी किसकी? आपकी. पैसा किसका? आपका. किसने सोचना चाहिए? आपने. That is why I'm here for to guide you. Friends, please plan your future. बहुत जरूरी है. धीरे धीरे एक बार वो आदत हो जाएगी, यू विल एंजॉय द लाइफ. आज है तो कल नहीं है. ये जो डायलॉग है ना, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है फिर है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल जिंदगी में नहीं फ्रेंड्स. रियल जिंदगी में बजटिंग, प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स एंड वांट्स, इनटू सेग्रीगेटिंग योर नीड्स एंड वांट्स इनटू व्हाट यू रिक्वायर इन लाइफ. दैट इज व्हाट योर बेस्ट शुड बी. क्या बनना चाहते हो? अगर कुछ सोचा ही नहीं है तो सोचो, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी अ वॉन्डरर. कहां जाना है पता नहीं, लाइफ में क्या बनोगे पता नहीं. वो जिंदगी भगवान ने दी है, भगवान जैसे बोलेगा. अरे भगवान तुमको बोलने नहीं आ रहा है. हैव यू सीन एनीबॉडी? हम वर्शिप करते हैं. प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ क्वेश्चन फ्रॉम द गॉड. अगर मान लो मुलाकात हो गई आपके भगवान से, तो वो अगर आपसे पूछेगा कि मेरी सबसे बेहतरीन क्रिएशन ह्यूमन बीइंग, अब उसे मैंने सब कुछ दिया, ब्रेन दिया, हाथ दिए, दो आंखें दी, दो कान दिए, नाक दिए, सब कुछ दिया. व्हाई इज ही फेलिंग इन यूटिलाइजिंग देम? इफ यू आर गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देन यू आर गॉट द आंसर फॉर योर लाइफ. तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो. भगवान जैसे बोलेगा वैसे चलना है. बड़ी बात है अगर भगवान आपसे बात कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है. सो फ्रेंड्स, प्लान योर फ्यूचर. दैट इज व्हाट आई विल से. डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस थिंग्स. हमें एक बिलीफ रखना चाहिए, हमें उस पर चलना चाहिए, वो सही है. लेकिन भगवान खुद आता नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है. दैट इज व्हाई यू हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. कैसे करोगे? ये सवाल जब खुद से पूछोगे तो जवाब मिलेगा आपको, अगर प्लानिंग होगा तो. इफ यू हैव सेग्रीगेटेड योर वांट्स एंड नीड्स करेक्टली, नाउ यू हैव गॉट द आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन. जरूरतें हम बोले तो बहुत है, बट वी हैव टू सेग्रीगेट दैट. बाजू वाले के पास बड़ा टीवी है तो मुझे एक बड़ा टीवी लेना चाहिए, जरूरत नहीं है. यू सी, वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. घर में एक कलर टीवी है, हम सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाजू वाले ने बहुत ही बड़ा टीवी ले लिया तो मुझे भी वैसा बड़ा टीवी चाहिए. नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. यू सी, वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. नहीं तो यू विल बी आउट ऑफ रिसोर्सेस, यू विल बी आउट ऑफ मनी. तो कोई नहीं पूछता है फ्रेंड्स. नोबडी विल बी योर फ्रेंड. सो सेट लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स. ये करो. द मोमेंट टू स्टार्ट जनरेटिंग द इनकम, प्रिपेयर अ सेविंग गोल. कितना होना चाहिए एक साल में, कितना 10 साल में कितना होना है, दैट इज हाउ यू शुड प्रिपेयर. इसको इवैल्यूएट भी करना है. इन द अर्लियर स्टेजेस यू विल हैव टू इवैल्यूएट ऑन मंथली बेसिस. कितना सेव हुआ, सच्ची में हो रहा है कि नहीं हो, कि आदत नहीं है ना, पहले आदत डालनी पड़ेगी. देन यू विल रियलाइज, अरे अभी बढ़ रहा है मेरा सेविंग. सेविंग बढ़ना विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. So don't ignore the things. So in the process, you should educate yourself
of financial education also. That is what I am trying to give you. मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, so that you secure your future financially. So educate yourself financially. In our series, we are talking of many of the types of investments. In the Midasters series, I am giving the details of those. So friends, we have to. In my another channel, that is Aging Gracefully, I am talking of how we live life after the retirement. और इस सीरीज में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी सीरीज के लिए. आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है सर? वो तो रिटायरमेंट के बाद में अभी तो जीना है ना. बिल्कुल सही, लेकिन सभी अभी खर्चा कर दोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड फर्दर इन लाइफ? मैंने कहा ना, भगवान खुद नहीं आता है, वो सर्कमस्टांसेस भेज देता है. सो यू विल हैव टू टाइड ओवर द थिंग्स. आप अच्छा करो, आपको एक अपॉर्चुनिटी भी भेज देता है. आता है. सो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, बजटिंग, ये दिस विल कॉस्ट यू वेरी डियरली फ्रेंड्स. यू शुड कीप द नॉलेज. पैसा किसका? आपका. किसने सोचना चाहिए? आपने. तो बी प्रिपेयर्ड विद द फाइनेंशियल. आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है और बहुत कुछ कर डिग्री मिलानी है, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल थिंग्स है फ्रेंड्स. जरूरत क्या है क्या? तो जरूरत है. देन that cannot be substituted by any other thing. Hence, first segregate what are your wants and what are your needs. Needs, they are to be completed. They are to be attended to at any cost. So be prepared for that. अब अगर नहीं प्रिपरेशन किया तो वो जो नीड रहेगी, मे बी मेडिकल रिक्वायरमेंट, उस वक्त तो फिर आप कहोगे अरे मेरे पास नहीं. देन यू विल बी फोर्स्ड टू beg, borrow, or steal. What is the result? Compromise of your self-respect, which is not allowed. No. Independent, self-confidence, self-respect is the necessity in life, friends. So prepare for it. धीरे धीरे आप अपना किटी बढ़ाइए, सेविंग्स बढ़ाइए. Start investing. So एजुकेशन पार्ट इज अ नेसेसिटी. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. उसके लिए बहुत सारे घंटे देने नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स. सो इन्वेस्ट टाइम इन सम टाइम फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट. अब इतना समय है, वही 24 घंटे है सबके पास, लेकिन जिसने सही इस्तेमाल किया वो सक्सेसफुल हो गया, और जिसने नहीं किया वो आज भी उसी पे रहा है. अगर भगवान ने मुझे ये दिया होता तो मैं कुछ बन जाता. अब भगवान भी वही बोल रहा है, मैंने सबको दिया था, तुमने इस्तेमाल नहीं किया. You see, you don't have the answer for his questions. Why didn't you utilize your brain? Why didn't you utilize your time properly? Why did you waste your time on redundant things which are not important in your life? Because you could not segregate your needs and wants. So avoid procrastination on savings and investment. कल करूंगा, अभी तो मैंने एंजॉय करना चाहिए. मेरा पहला पगार है, ये मेरा पहला इनकम है, तो आज हम उसको बिल्कुल मजे में लेंगे, सबको पार्टी देंगे. अरे बाप रे. तो यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग योर सेविंग. इन अ वे यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग योर फ्यूचर. इन अ वे यू आर प्लेइंग विथ योर फ्यूचर. यू आर मेकिंग योर फ्यूचर फाइनेंशियली इनसिक्योर. सर पहले पगार में ऐसा क्या होने वाला है? अरे पहले पगार से ही चालू करना है. When it's your life, it's your money, you start from the day you start generating the income. That is what I have also stated in my retirement planning process. एक एपिसोड मैंने इसके लिए भी बनाया कि रिटायरमेंट में प्लान कैसे करोगे. सो द डे यू स्टार्ट जनरेटिंग द इनकम, प्रिपेयर फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग ऑल्सो, प्रिपेयर फॉर योर इमरजेंसी फंड्स ऑल्सो. जो बचेगा उसे एंजॉय जरूर कीजिए फ्रेंड्स. ना कि जो पूरा पगार मिल गया तो उसे मैं एंजॉयमेंट कर दिया. नो नो नो, डोंट डू दैट. वो गेन्स शॉर्ट टर्म गेन्स है, छोटी सी बात है, इसे समझ लीजिए. मुझे आनंद आया, मैंने 10 लोगों के साथ खाना खिलाया सबको, बड़े रेस्टोरेंट में जाके. क्या दिखाना चाहते थे आप? And who is going to help you in your needs? Ask this question. Nobody, friends.
Be prepared for your be prepared to secure your future financially. So don't procrastination मतलब कल करूंगा, अगले पगार से करेंगे, जब आएगा तब देखेंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करना. स्टार्ट फ्रॉम द डे वन. सो स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल. ये एज सून एज पॉसिबल मैंने टर्म यूज किया क्योंकि आई विश दैट यू स्टार्ट द डे यू start generating income, but plan your things. That is what I wish to make you understand. Please don't play with your future. Make it financially secure first. उसके बाद सारी चीजें. इमेजिन करो कुछ साल बाद जैसे आपकी उम्र बढ़ जाएगी, कैसे लगेगा आपको? आप लोगों से पैसा मांग रहे हो, मुझे हेल्प करो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसे की जरूरत है. हाउ विल यू फील? हाउ योर फैमिली मेंबर्स विल फील? If you feel that this is a good thing, I don't have anything to say for that. But compromising on self-respect, compromising on this, securing your future financially is not at all an appreciable step. So, start generating income. Passive income होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, पैसे से पैसा बनना चाहिए. मतलब बैंक में पैसा रखा, सेविंग में इंटरेस्ट दे रही है ना बैंक, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो मिलेगा, ओके. But then you have to think over, that is what I said, learn the financial discipline also. इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, पैसा कैसे बढ़ना चाहिए, वो सोचना जरूरी है. सिंपल इक्वेशन है फ्रेंड्स. पैसा किसका? आपका. जिंदगी किसकी? आपकी. सोचना किसने? आपने. प्लीज थिंक ओवर दैट. So in the process you have to prepare for your emergency funds. That is the safest and the most important part of first step you should do in your life. बिकॉज प्रॉब्लम आने के बाद हम दो चीजें करते हैं. एक तो अपनी जिंदगी को कोसते हैं, फिर हम भगवान के कोसते हैं. दोनों सूरतों में हार अपनी ही है. बिकॉज वी डिडंट अप्रिशिएट our own resources, or we didn't think of generating of passive incomes also. करना चाहिए ना, तभी तो. नाउ मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आएगा तो सब कुछ आपको हेल्प कर दे, लेकिन isn't it that you are preparing yourself for your future, for securing your future financially? Isn't it not that you will be keeping yourself independent with self confidence and self respect? That's self development. That is what we are after. So don't go after those quick schemes, है ना. तुम इसमें पैसा डालो, 10 मिनट में तुम्हारा डबल हो जाएगा. अरे कहां से होगा? थोड़ा सा लॉजिक अगर हम इस्तेमाल भी करें, ब्रेन इस्तेमाल भी करें, ये फ्रॉडुलेंट लोग हैं. अगर मनी इतने जोर से इतने फास्ट ग्रो हो जाता तो सभी लोग अमीर बन जाते हैं. मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, तभी हम सेव करके आगे बढ़ते हैं. देयर इज नो फास्ट रूट for income generation. So don't believe all these fraudsters. And so also don't go into the debt trap. माने क्या? Don't neglect the debt management, है ना. आजकल तो बहुत सारा आपको EMI मिल जाएगा, आप खरीद लो, पैसा हमने तो मांगा ही नहीं है, आप लोन ले लो. वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने भी बहुत अच्छा लगता है कि हमको वो बोल रहा है, देखो वो मेरे पे कितना विश्वास है, वो मुझे 5 लाख का लोन देने के लिए तैयार है. वो विश्वास नहीं है. ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट, बट देन यू विल हैव टू पे द ईएमआईज आल्सो. मतलब ये जो चीज आपने खरीदी है वो तब तक आपकी नहीं होती जब तक आप उसके ईएमआई पूरे नहीं करते. मतलब आपकी चीज है ही नहीं. लोन्स, डेट ट्रैप्स सभी जगह पे है. वो आपको ऐसे कई मैसेजेस भी आते होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी आपको इतना इतना लोन पास हो चुका है. अप्लाई किया था? नहीं, तो आपको ऐसे ही दे दिया. बड़ा अमीर दोस्त है आपका फिर वो. What is the rate of interest? Oh, I didn't ask for. That is what the concern is. Don't fall into those debt traps. Don't neglect the debt management. High costing loans अगर है, क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ है, then you first repay that. Because that is eating out your savings. आपका फ्यूचर इनसिक्योर बना रहा है वो.
एग्जाम्पल, अगर आपने टीवी इंस्टॉलमेंट पे लिया है तो वो टीवी आपका तब तक नहीं बना जब तक आप उसके पूरे इंस्टॉलमेंट नहीं देते. सिंपल. बिकॉज इफ यू डोंट पे द अमाउंट, द सेलर इज गोइंग टू टेक अवे दैट टीवी. करेक्ट. सिंपल. अगर बैंक से लिया तो बैंक वाला भी वही बोलेगा. एसेट्स, if you are taking it on loans, then the asset is not belonging to you till you repay the loan. तो क्यों करना है? प्लान इट आउट. जो इतने साल में नहीं आपके जिंदगी में फर्क पड़ा, तो एक और साल में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एक और साल सही, इतना तुरंत हमको क्या जरूरत है? दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. अवॉइड द डेट ट्रैप्स because they are eating out your savings. That is what is necessary. So if you plan the things, तो इस साल नहीं, अभी तो मैंने डिसाइड किया, अभी हमारे घर में छोटा टीवी है, मुझे बड़ा टीवी लेना है. ओके, प्लान करो, बजट इट आउट. हो सकता है कि आप 6 महीने बाद ले पाओगे, हो सकता है आप 1 साल बाद ले पाओगे. लेना जरूर है. प्लान करोगे तो एक्सेस इनकम जो आपका वहां जा रहा था वो बच जाएगा. दैट इज योर सेविंग. दैट इज सिक्योरिंग योर फ्यूचर फाइनेंशियली. नहीं तुरंत चाहिए, मुझे उसको कंपटीशन में उतरना है. क्या काहे का कंपटीशन? डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस. You have different set of skills. You have different future. Your goals are different. The person you are comparing to is a totally different person, totally different individual. He has got different set of goals. उसके challenges अलग है, उसकी सोच अलग है. Don't compare yourself. Write it down on your personal notebook, personal journal. मैंने कहा है आपको, please keep your personal journal. And then chalk out. Then you will realize कि अरे नहीं, इतने cost अभी क्यों देनी है? Wait for some time. 6 महीने बाद मैं ले सकता हूँ, तो 6 महीने बाद लीजिए. The costing will help you to save for your future. इसीलिए मैंने कहा मंजिल की राह में रुकावटें जरूर आएंगी. मंजिल की राह में रुकावटें जरूर आएंगी, पर जुनून हो दिल में तो रात भी रोशनी बन जाएगी. पैसा सिर्फ एक रास्ता है सपने सच करने का. पैसा सिर्फ एक रास्ता है सपने सच करने का. अगर हौसला हो मजबूत तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.